Good morning to all students. In this particular lecture, we will start the unit number 3, that is natural convection, in which today we will discuss about the dimensional analysis. तो स्टूडेंट्स जो डायमेंशंस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती हैं, उसमें मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर एम, एल, टी एंड थीटा. तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर मास, length, time and temperature, and these are designated by the letters m, l, t, theta respectively. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डायमेंशनली होमोजीनियस यानी डायमेंशनल होमोजीनिटी. डायमेंशनल होमोजीनिटी का मतलब है फिजिकल इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी. अगर हम बात करते हैं किसी भी फिजिकल इक्वेशंस की, जैसे v इज इक्वल टू होता है आपका u प्लस ए इंटू में टी. ठीक है. तो ये क्या एक पर्टिकुलर इक्वेशंस है जिसमें हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी का आपस में क्या बता रहे हैं, रिलेशंस बता रहे हैं. तो अगर हम इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशंस बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशंस है, तो ए फिजिकल इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़. एनी करेक्ट इक्वेशंस expressing a physical relationship between quantities must be dimensionally homogeneous. ठीक है, and numerically equivalent. Okay. तो dimensional homogeneity states that every term in an equation when reduced to fundamental dimensions must contain identical power of each dimensions. A dimensionally homogeneous equation is applicable to all system of units. In a dimensionally homogeneous equations, only quantities having the same dimensions can be added, subtracted और equated. तो इसमें हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पर v है, वेलोसिटी है. Now further applications of dimensional homogeneity. The principle of homogeneity proves useful in the following ways. These are the applications which you have to go. It facilitates to determine the dimensions of a physical quantity. Yani if we want to calculate the dimensions of a physical quantity, then we can use the dimensional homogeneity principle. It helps to check whether an equation of any physical phenomena is dimensionally homogeneous or not. And we can also check that a particular given equation is dimensionally correct or incorrect with the help of dimensional homogeneity principle. Further, it facilitates conversion of unit from one system to another. Okay. Next one is it provides a step towards dimensional analysis which is fruitful, employed to plan experiments and to prevent the results magnificently. Method of dimensional analysis. So there are two methods. Okay, there are two methods. One is Rayleigh method, students. Another one is Buckingham Pi theorem or methods. In these two methods, Buckingham Pi methods is very most important. Then first we have to go the Rayleigh method. Rayleigh methods क्या होता है, तो यहाँ देखिए, this method gives a special form of relationship among the dimensionless groups. तो जितने भी डायमेंशनलेस ग्रुप्स होते हैं उनमें एक स्पेशल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए रिले मेथड यूज होता है. इट हैज़ द इनहेरेंट ड्रॉबैक. इसका एक ड्रॉबैक है दैट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डायमेंशनलेस ग्रुप्स टू बी ऑब्टेन्ड. तो ये आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ डायमेंशनलेस ग्रुप्स हैं जो हम पर्टिकुलर यूज़ करेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ड्यू टू दिस रीजन दिस मेथड हैज़ बिकम ऑब्सोलूट. इस वजह से ये मेथड आज की डेट में क्या हो चुका है, एब्सोलूट हो चुका है. तो रिले मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर ए वेरिएबल which depends upon maximum 3 or 4 वेरिएबल ओनली. तो रिले मेथड्स उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए यूटिलाइज होता है जहां एक पर्टिकुलर गिवन वेरिएबल मैक्सिमम 3 to 4 वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंस हो. इन केस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बिकम मोर देन 4. ठीक है, अगर मान के चलिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो जाए आपके मोर देन 4 ज़्यादा हो जाए, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो यहाँ पर इन दिस मेथड ए फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ सम वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस. जब हम बात करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर
जो आपका मेथड है दैट इज़ नोन एज रिले मेथड। तो रिले मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी जैसे मान के चलिए पर्टिकुलर गिवन वेरिएबल है एक्स, कैपिटल एक्स, ठीक है। अगर कैपिटल एक्स अदर वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड अप टू एक्स है, तो जो फंक्शनल इक्वेशंस है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड अप टू एक्स है, ठीक है। इन द एबव इक्वेशन एक्स इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स क्या बच्चों आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और अप टू एक्स एन आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर एक्स आपका क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो हमने लिख दिया इक्वेशन वन में एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स वन टू एक्स एन, ये मान के चलिए 6.1 इक्वेशन है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड वाइल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज विच गवर्न द वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इक्वेशन 6.1, इक्वेशन 6.1 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स इज द फंक्शन ऑफ, तो फंक्शन को हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे सी एक्स वन की पावर ए कॉमा एक्स टू की पावर बी एक्स थ्री की पावर सी एंड एक्स बी की पावर एन, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में आ जाएगा आपका, वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट, जहाँ पर सी क्या एक कॉन्स्टेंट है, एंड ए बी सी अप टू एन आर आर्बिटरी पावर्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड अप टू एन आर ऑब्टेन बाई कंपेयरिंग द पावर ऑफ द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड की जो डायमेंशंस हैं उनको क्या करेंगे, फंडामेंटल डायमेंशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एम एल टी थीटा के फॉर्म में, और जो बच्चों कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए बी सी अप टू एन, और उन कांस्टेंट को वापस से इक्वेशन 6.2 में पुटअप करेंगे, देन वी विल गेट ए पर्टिकुलर रिलेशंस बिटवीन एक्स एंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड अप टू एक्स एन। तो थस द एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर आप एक प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, बाकी सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रैग फोर्स के लिए ऑन स्मूथ स्फीयर ऑफ डायमीटर डी। किसके लिए, एक स्मूथ स्फीयर है जिसका डायमीटर डी है, मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इन ए फ्लूइड हैविंग डेंसिटी रो, ठीक है, और ऐसे फ्लूइड में जिसकी डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है, एंड डायनामिक विस्कोसिटी म्यू, और जिसकी डायनामिक विस्कोसिटी क्या है बच्चों, म्यू है। तो हम लिख सकते हैं, देखो फोर्स यहाँ पर क्या है, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डायमीटर डी, तो डायमीटर डी ले लिया हमने यहाँ पर, वेलोसिटी दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर फ्लूइड डेंसिटी, और चौथा पैरामीटर ले लिया डायनामिक विस्कोसिटी। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डी वी रो डेंसिटी एंड म्यू डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू, ये यहाँ पर फंक्शन था, फंक्शन को हटा के हमने क्या कर लगा दिया, कॉन्स्टेंट डी की पावर ए, वी की पावर बी, रो की पावर सी और म्यू की पावर डी, इक्वेशन नंबर 1 होगी, जहाँ पर सी क्या एक नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट है। तो अब अगर हम यूज़ करते हैं एम सिस्टम को, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर डायमेंशंस इज, तो यहाँ पर देखिए फोर्स की इक्वेशन एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये डायमीटर है 10 क्योंकि लेंथ की पावर ए इंटू में, वेलोसिटी की क्या है एल टी की पावर माइनस वन की पावर बी, और म्यू डायनामिक विस्कोसिटी एम एल की पावर माइनस थ्री का पावर सी, और यहाँ पर ये आपका डी आ जाएगा, ठीक है। डी क्या आपकी ये डेंसिटी है एम एल की पावर माइनस थ्री सी, और म्यू का डायनामिक विस्कोसिटी एम वन एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस वन, ये जो पर्टिकुलर, और ये यहाँ पर और ये यहाँ। अब बच्चों करना कुछ भी नहीं है, जहाँ पर एम की पावर है उन सभी को जोड़ दो, एल की पावर को जोड़ दो और टी की पावर को जोड़ दो और कंपेयर कर लो, एम एल टी की पावर कंपेयर करोगे तो सी प्लस डी 1 आ रहा है, ठीक है, ए प्लस बी माइनस थ्री सी माइनस डी 1 आ रहा है, माइनस बी माइनस डी क्या आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है। इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, और यहाँ से बच्चों ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करके वापस से इस इक्वेशन में पुटअप करनी है। तो हमने इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं उन वैल्यूज़ की वैल्यू हमने पुटअप की, वापस से ए बी सी डी की वैल्यू पुटअप की, तो कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। और फिर इसको क्या करना है, बस सिर्फ जस्टिफाई और सिंप्लीफाई करना है, एंड देन वी विल गेट दिस वन, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, अगर जो बकिंगम पाई थ्योरम के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ड्रॉबैक यही है कि अगर मान लो 3 से 4 वेरिएबल है तो इस पर्टिकुलर मेथड को हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों बकिंगम पाई थ्योरम की बात करते हैं तो इसका स्टेटमेंट आपको जरूर याद रखना है, इफ़ देयर आर एन वेरिएबल, अगर एन वेरिएबल है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ए डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशंस, एक डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशंस में इफ़ दिस कंटेन एम फंडामेंटल डायमेंशंस, अगर इनकी जो डायमेंशंस है वो एम है, एम फंडामेंटल डायमेंशंस है, जैसे एम एल टी थीटा जस्ट लाइक इट,
then the variables are arranged into n minus m dimensionless terms. तो जो वेरिएबल है उनको हम n माइनस एम डायमेंशनलेस टर्म्स के रूप में अरेंज करेंगे. दीज डायमेंशनलेस टर्म्स आर कॉल्ड पाई टर्म. ये जो डायमेंशनलेस टर्म्स हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? पाई टर्म्स बोला जाता है. जैसे अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे, इफ एनी वेरिएबल x1 डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इतने पर डिपेंड कर रहा है, तो हमने लिख दिया x1 इज अ फंक्शन ऑफ x2. तो स्टूडेंट्स अगर आगे बात करते हैं, जैसे मान के चलिए x1 जो है बच्चों यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, x1 इज द फंक्शन ऑफ x2, ठीक है, x3, x4 एंड xn, ये वेरिएबल्स का फंक्शन है. तो इसको लिख देंगे हम x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन ऑफ x2, x3 एंड सो ऑन. अगर हम इसको फर्दर रीराइट करते हैं इस इक्वेशंस को, तो हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है उसमें कितने वेरिएबल है, x1 से लेके xn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. अब इट इज़ ए डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशंस. ठीक है, अगर ये डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशंस है एंड कंटेन n वेरिएबल्स, और अगर मान के चलिए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं बच्चों? n वेरिएबल्स हैं. जैसे x1 से स्टार्ट कर रहे हो xn तक जा रहे हो तो n वेरिएबल्स हो जाएंगे. इफ़ देयर आर m फंडामेंटल, ठीक है, m फंडामेंटल डायमेंशंस, अगर जितने भी ये n वेरिएबल्स हैं तो n वेरिएबल्स में मान के चलिए m फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, देन अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम, तो जो बकिंघम पाई थ्योरम के अनुसार अगर हम बात करते हैं, इक्वेशन 6.4 की कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पाई टर्म्स. तो इसको हम नंबर ऑफ पाई टर्म्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशंस को. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम. तो इन विच नंबर ऑफ पाई टर्म्स इज इक्वल टू, जिसमें जो नंबर ऑफ पाई टर्म्स होंगे बच्चों वो कितने होंगे? जैसे n तो क्या नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और m क्या आपकी फंडामेंटल डायमेंशंस, तो n माइनस एम टर्म्स क्या होंगे आपके? इक्वल टू n माइनस एम टर्म्स. हेंस इक्वेशन 6.4 को हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 1 पाई 1 से लेके पाई n माइनस एम इज इक्वल टू 6.5. ठीक है. तो ईच डायमेंशनलेस पाई टर्म इज फॉर्म बाई combining m variable out of the total n variable with one of the remaining n माइनस एम वेरिएबल. जैसे मान के चलिए अब आपके पास जितने भी वेरिएबल्स बचे होंगे उनकी सबके अलग अलग इक्वेशंस लिख देंगे. जैसे यहाँ पे लिखी हुई है पाई 1, पाई 2 अप टू पाई n माइनस एम. वेरिएबल क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? x2, x3, x4 और यहाँ पर x1, x2, x3, x4 और x5 एंड सो ऑन, इस तरीके से. और फिर फर्दर इसको हम क्या कर देंगे बच्चों? यहाँ पर सॉल्व कर देंगे. ठीक है.